So good evening and welcome to the Wednesday Spirituality and Healing Meet. I'm Shashi Dhar, your host. I welcome you all to the session today. And the agenda for today is continuation of the last week, which is basics of spiritual healing, awakening at the heart chakra. Okay. So थोड़ा सा recap कर लें. Last week हमने बात करी थी heart chakra, अनाहट चक्र के healing के बारे में. And if we talk of heart chakra, there are some things that we need to have the basic information about heart chakra. Heart chakra is the fourth chakra from the bottom chakra if you count. How many of us know all the 7 major chakras? Major chakras की बात करूँ. 7 major chakras सब लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं? Okay, good. जो नहीं जानते हैं उनकी knowledge के लिए थोड़ा सा मैं cover कर लेता हूँ. हमने अभी तक जो cover किया है. We started with the first Mooladhara or the root chakra, okay, which is situated at the base of the spine. And that is the basic foundation. So you can say that is the lowest major chakra that we are looking at in the pranamaya kosh, which is in the energy body, right? Above the root chakra, we have the Swadhisthana chakra or the sacral chakra, right? Above the sacral chakra, we have the solar chakra or the Manipura chakra. तो ये 3 लोअर चक्रास हैं जिनको हम बोलते हैं जो कि तमोगुण से हैं, which means they are the covered by the impacted by the dark energies. तो इसमें तमोगुण रहते हैं हमारे all the negative emotions and this is the ego center. तीनों में ego center बहुत strong होगा, which means you will be impacted very strongly by your negative ego, negative emotions. So इनको पार करने के लिए जो balancing चक्र होता है, that is the fourth chakra that we are talking of, which is the anahat chakra or the heart chakra. Now, root chakra, we talk of earth element. Then sacral chakra, we talk of water element. Solar chakra is the fire element. Anahat chakra is the air element. So we are talking of the air element. और अगर नीचे के 3 चक्रास ईगो के सेंटर हैं तो हार्ट चक्रा हमारा इमोशनल सेंटर है. Let's know that. Yeah. तो माइंड के 3 बेसिक क्वालिटीज हैं मानते हैं हम, या 3 एस्पेक्ट्स हैं माइंड के, ईगो, इमोशन एंड इंटेलेक्ट. एवरीबॉडी ओके विद दैट? ईगो, इमोशन एंड इंटेलेक्ट. तो ईगो सेंटर आपका सोलर चक्र है, हार्ट चक्र में आपका इमोशनल सेंटर है, और इंटेलेक्ट जो है दैट कम्स एट योर थर्ड आई चक्र. करेक्ट? सो दिस इज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ हाउ वी आर गोइंग अबाउट. सो लोअर चक्र से अगर आपको फ्रीडम चाहिए एंड इफ योर कॉन्शियसनेस इज मूविंग अप, ओके, दैट यू एज अ कॉन्शियसनेस यू आर मूविंग अप फ्रॉम द सोलर चक्र टू द हार्ट चक्र, देन द क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी डिफरेंट. वो तमोगुण से ग्रसित था तो इट इज लाइक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप घुसे हुए हो, तो लोअर 3 चक्रास विल ऑलवेज कीप यू रूटेड टू द वर्ल्ड. आपको दुनिया में अटका के रखेंगे. तो रूट चक्रा इज ऑल अबाउट सर्वाइवल, सैक्रल चक्रा इज ऑल अबाउट योर प्लेजर सेंटर, तो इट इज ऑल्सो अबाउट पर्पस ऑफ लाइफ, बट इट इज मेनली रिवॉल्विंग अराउंड योर प्लेजर सेंटर. सो इट इज राग द्वेष का सेंटर है वो, राइट? एंड सोलर चक्र इज ऑल अबाउट पावर एंड कंट्रोल. वी नो दैट. इफ यू वांट फ्रीडम फ्रॉम दिस एंड यू आर मूविंग टू द हार्ट चक्र इज ऑल अबाउट व्हाट? अमित जी, आपका फेवरेट स्टेटमेंट हार्ट चक्र में क्या है बताएंगे? ओके, नो प्रॉब्लम. आपके उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है शायद वॉइस में. सो Anahat chakra or heart chakra is all about unconditional love, forgiveness, gratitude, compassion, contribution, higher qualities आ गई. That means this is the first center where we are talking of divine qualities. अभी तक lower chakras में आपकी divinity का कोई भी presence नहीं था. This is your first center or the balancing chakra where you will experience divinity. And that is why bhakti is so important, right? Opening of heart chakra is done by overcoming the ego center. Ego center को overcome करने के लिए best जो योग का मार्ग हम मानते हैं वो है कर्म योग. You surrender your ego to the divine, that is कर्म योग. You surrender your emotion to the divine, that is bhakti योग. And you surrender your intellect to the divine, that is jnana योग. So you need to understand when we are moving on the sadhana or the spiritual journey, हर योग के किसी भी पाथ पे आप जाओगे आगे, it will give you freedom. I think everybody is connecting with me. Yeah. So why the importance of bhakti yoga? Before we start,
the session. The first topic will be why Bhakti Yoga, or why हार्ट चक्र को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया हुआ है, शास्त्रों में भी दिया हुआ है, एंड हीलिंग में भी, हम स्पिरिचुअल हीलिंग में भी हम बात करते हैं कि हार्ट चक्र को ओपन या हार्ट चक्र को हील करना बड़ा जरूरी है. Why is that important? Because first if you understand why, then the what becomes easy. करेक्ट? तो आप क्यों करोगे भक्ति, ये तब क्लियर हो जाएगा अगर आपको मालूम हो कि भक्ति करने से हार्ट चक्र खुलेगा. क्यों खोलना जरूरी है, क्यों खोलना जरूरी है? आप 3rd फ्लोर से 5th फ्लोर पे जा सकते हो विदाउट गोइंग टू द 4th फ्लोर और गोइंग थ्रू द 4th फ्लोर. थिंक अबाउट इट. नीचे के 3 चक्रास 3 फ्लोर हैं जो तमोगुण से हैं. हार्ट चक्र इज ऑल अबाउट इमोशंस, द रजोगुण. इसके ऊपर जो है वो सब सतोगुण है. थ्रोट चक्र एंड क्राउन, थर्ड आई चक्र एंड दैट इज सतोगुण, करेक्ट. एंड क्राउन चक्र इज निर्गुण. सो वो थोड़ा भी छोड़ देते हैं डिस्कशन के लिए. तो अगर हम तमोगुण से निकल के रजोगुण में आ रहे हैं तो वी हैव टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द ईगो एंड वी हैव टू बी स्थित विथ व्हाट, विद द रजोगुण इमोशंस. तो ये टर्न अराउंड करना जरूरी है ना. जब तक आपका ये ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा, यू विल नॉट बी एबल टू गो टू द हायर चक्रस. And we are talking of rising of the consciousness through the chakras. That's what life is all about. Spiritual realization आपकी वही है. Self realization means what? It's a 7-step journey. I say root chakra to crown chakra. That is spiritual. That is your self realization journey. Correct? तो 3rd chakra से अगर आपको ऊपर चलना है तो सिल्विया जी, this is an answer to what you had raised a question. Why Bhakti Yoga is so important? Why I should focus more on Bhakti Yoga in my sadhana? जब तक आप हार्ट चक्र को हील नहीं करेंगे, या हीलिंग की लैंग्वेज में बोलें तो, या फिर हार्ट चक्र को आप जब तक एक्सपैंड नहीं करते हैं और वहां पे अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, आपकी जर्नी अटक जाएगी. यू विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी. सो हाउ मेनी ऑफ यू कैन कनेक्ट विद व्हाट आई एम सेइंग? व्हाई भक्ति योग इज इंपॉर्टेंट और व्हाई हार्ट चक्र हीलिंग इज इंपॉर्टेंट. आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. लेट मी टेल यू, पीपल हैव स्पेंट, और अदर एनी ह्यूमन बीइंग और एनी जीवा विल स्पेंड लॉट ऑफ लाइफ टाइम्स क्रॉसिंग दिस बिग बर्डन, बिग हर्डल. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल. क्योंकि तमोगुण से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज स्टक इन दैट materialistic world and there is hardly any time for the divinity. Correct? Spiritual journey में आने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है. क्यों टाइम नहीं है? अभी right now in my discussion Tony was sharing, अभी स्कूल खुले हैं लॉकडाउन के बाद, lot of worldly matters to attend. साधना का टाइम कहाँ से लाऊं? somebody else is saying साधना करना क्यों जरूरी है? I'm okay where I am. You have to move forward on the spiritual journey. That is your first commitment as a soul. Self realization. हार्ट चक्र को पार करके आगे जाना जरूरी है. That's why heart chakra healing is important. That is why bhakti yoga is so important. Path of love, path of devotion. अब आप बोलेंगे शास्त्रों में लिखा गया भक्ति योग, आज के मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट तो कुछ और बोलते हैं. Yes, modern psychologists call it self love. They call it mindfulness. The same thing. Path of love or self love is same thing. Path of bhakti, path of devotion, path of love or self love. What is the difference? We all attended संजीव का सेल्फ लव का सेशन अटेंड किया था सबने, बहुत लोगों ने किया था. Did we get benefit? What was that journey about? It's opening your heart chakra. कितने लोगों को वहां पे एक्सपीरियंस हुआ फ्रीडम एंड फुलफिलमेंट एंड जॉय, राइट? So when you love yourself, you can love others. That is the first concept of self love. Where is that coming from? भक्ति योगी तो है, कुछ और है क्या? So I want to first establish the importance of bhakti yoga. So if you have any questions or if you want to share something, please do that. Then we go ahead. फिर हम देखेंगे क्या करना है. So I will pace this session in such a way. अभी हम बात कर रहे हैं why bhakti yoga. Then we will talk of what you can do in bhakti yoga. Wherever you are, there is a next level, as comfortable for you. And then what can open up for you as a possibility. Your spiritual journey में क्या open हो सकता है. That is how we will move in this session, right? So anybody who wants to share first, then we go ahead. And meanwhile, let me welcome many other people have joined in. So Pushpa Agrawal ji, pranam, namaskar. Bhushan ji, please switch on your videos if you can. Shubhika, Parth, Bhushan ji,
Please switch on your video so that we can connect. Welcome, welcome, Leslie. Good to see you with your video on. Yes. Welcome, welcome, Shubhika. Great. So let's have some people share. अभी तक मैंने जो बोला उससे क्या open up हो रहा है, कुछ insights आ रही हैं, and our guests today also can ask any questions. Yeah. Okay. Shashi, yes. My concern, like my query is the praying part. मतलब हमारे को जो प्रार्थना या prayer करनी होती है, it need not be done for hours and hours to be on the spiritual path. My question is, one can pray a meaningful prayer or be on the spiritual path, say a prayer, do good. For me, that is what bhakti yoga, than to be, constantly keeping fast after fast or not being able to do good for the world. I'm talking about the show kind of a bhakti. Is that bhakti, or just in heart one can pray, do good and things like that? Okay, Mera query, that is what I want to know. Very good, Sylvia ji, got your concern absolutely loud and clear. Very good. In fact, that's a very authentic way of asking ki karna kya hai. So we are going to come to that. So there are various forms. In fact, there are in Shastra mein bola gaya, there are 9 forms of devotion. You can pick any, pick and choose anyone that you want. And wherever you are, go to the next level. Go to the I will say next option. ये बोलो और बहुत सारे हैं, तो जो आपको सूट करता है as per your likes and as per your I would say vibration, आपके vibration के साथ जो मैच करता है वो आप पिकअप कर लेंगे. जैसे ही आपको नजर आएगा वो you will get attracted to it like a magnet. Trust me, right? So we will discuss that. अभी हम करते हैं, उसी पे आ रहे हैं हम अभी. So what are the different kinds of methods how you can use the devotion? We can use that. Okay, good. Anybody else who would like to share before we move on to that topic? और कोई शेयर करना चाहेंगे? चलिए उसी टॉपिक से रिलेटेड बात कर लेते हैं. अगर अभी कोई सवाल नहीं है तो व्हाट काइंड ऑफ डिवोशनल प्रैक्टिसेस आर यू फॉलोइंग? आज की डेट में आप कौन से प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं जो आपको भक्ति के मार्ग पे आगे लेके जाता है? भक्ति मीन्स डोंट टेक इट कन्वेंशनल भक्ति. इट इज लाइक सेल्फ लव. इट इज पाथ ऑफ डिवोशन, पाथ ऑफ लव, एंड you can experience that by if you are able to forgive somebody in your life. If you love, accept, forgive and thank yourself and others, that is bhakti yoga. But if you have problems in forgiving somebody, this I mentioned in my last session also, इसको तो मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा, अगर ऐसा कुछ है, then you have to understand your heart chakra is blocked. You're not experiencing love, you're not expressing love. And if you think you are not worthy of love, ये थोड़ा सा और ज़्यादा सीरियस मैटर है ये फिर. Then you have to go to attend the session of Sanjeev for the self-love session, and then you will know how easily it is possible to love yourself. Because unless you love yourself, you cannot love others. And that is exactly in the traditional method we are calling it bhakti. Fill yourself up with the divine love, and then spread that love to everybody. That is bhakti. Okay. Yes. So let's have some people share before we move on. Any question? Yes, Amit ji, कुछ बोलना चाह रहे हैं? Yeah, I think what specifically she was trying to ask, I think bhakti yoga में specifically करना क्या है? I think what I have experienced, and correct me if I'm wrong, that a complete unconditional surrender, either to a character or a form or maybe a murti, maybe a religion or an object or something which has inspired, so complete surrender to that particular person. It could be even a guru in real life form who is living alive, or maybe it could be just a character which maybe does not exist in anybody's else mind and heart. There are some people, for example, I'm not saying that I had surrendered, but there are people who surrendered to Archangel Michael, for example, and there are various angels. Meera did for Krishna, for example. I think it is a complete surrender which has been inspiring, and I think there is a calling which actually tells you that this is the character or a figure that your soul is telling you to surrender to. It cannot be just any small transactional activity or a person. Your calling will not even come. Absolutely. So I think absolutely, I got that. Yeah, if this could answer. And I think when it happens, then there's an unconditional surrender, and then
you get energies, and I think and that there you understand a lot of dynamics of the heart chakra. I think that's got your point, Amit. Got your point. Thank you for sharing that. Very well said. See, actually, what you're talking of surrender, that is the highest form of devotion. वहां तक जाने से पहले कुछ, अब यहाँ एलिमेंट्री की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप पे सरेंडर की बात नहीं करेंगे. फर्स्ट स्टेप पे तो प्रैक्टिस क्या शुरू कर सकते हैं, वहां से बात करेंगे, है ना. अल्टीमेटली व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली परफेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आस्क मी, बिफोर वी गेट टू द स्टेप्स ऑफ दैट, लेट मी आल्सो टेल यू व्हाई, और लेट मी फर्स्ट कवर दिस स्टेप. ओके, सबसे पहले क्या होता है भक्ति योग में, कुछ भी आप करते हो, देयर हैज टू बी ए नेम एंड ए फॉर्म, which I mentioned last week also, no? Name and form. So suppose we talk of Lord Krishna. So name is there, Lord Krishna. There is immediately form आपका बन गया, आपको एक इमेज आ गई है लॉर्ड कृष्णा की, करेक्ट. सो बाल गोपाल भी हो सकते हैं या मैच्योर कृष्णा हो सकते हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, यू कैन विजुअलाइज इट इजीली, करेक्ट. सो नेम एंड फॉर्म. अब नेम एंड फॉर्म आपको मिल गया है, एंड इफ आई गिव यू गेट ए गुरु मंत्र. गुरु मंत्र मीन्स you have a guru and you surrender to the guru. Guru gives you a mantra, and with the divine grace, that mantra is capable or has the potency to take you to the level of self-realization. It is so powerful. Divine grace is there. Guru mantra is God in the seed form. This is what you need to understand. Underline and bold me. Guru mantra from a guru comes with divine grace and is God in the seed form. आपको सिर्फ उसकी chanting करनी है. Now if somebody says मेरे पास तो कोई गुरु है ही नहीं, your soul is your guru. So you will be drawn at the appropriate time. You will be drawn to a mantra if you feel like. Then chant that mantra. There are many universal mantras. Hare Rama, Hare Krishna, Hari Om, Om Namah Shivaya. Whichever mantra vibrates with you, you will get attracted to it. And then you start chanting of that. Simple. So ye mantra recitation. This is one form of devotion. Correct? Somebody else will say मेरे को मंत्रा नहीं आता है, मेरे को ये सब नहीं करना है. I am fine with दिया जला लिया सुबह उठ के. आमतौर पे लोग क्या करते हैं, every Tuesday, I'm talking of a Hindu tradition, every Tuesday they go to a temple. या अगर अपने घर में एक छोटी सी पूजा रूम बना रखा है, नहा धो के आप जाते हो वहाँ पे, अगरबत्ती जलाते हो, दिया करते हो, एंड देन जो प्रेयर होती है आपकी जो है प्रेयर कर लेते हो. 5-10 मिनट का जॉब है, एंड in 10 minutes you are out. That is the end of spiritual activities for the day. Now this is a ritual. Try to understand what I'm trying to say. I'm not saying this is wrong or right. All I'm saying is this is a ritual. This is a good ritual. Okay, but does that make you spiritual? If you do that for 10 years and nothing has happened to your anger, nothing has happened to your peace of mind, you're still that grumpy, blaming and angry and kind of a person, then this is not sufficient. क्योंकि आपके हार्ट चक्रों को कुछ नहीं हो रहा है, आपके हार्ट में कहीं अनकंडीशनल लव का बीज भी नहीं आ रहा है. सो दिस इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल. ये लेवल काफी नहीं है, एक अगला लेवल चाहिए. क्या क्या लेवल हो सकते हैं उसके ऊपर बात करना. करेक्ट. तो सबसे पहले नेम एंड फॉर्म अगर आपके पास है, इजी है. सो इट कुड बी फोटो ऑफ ए जीसस, यू आर इमेजिनिंग द जीसस, एकदम से फोटो नाम भी याद आ गया और फॉर्म भी बन गया. Now, whatever prayer you want to do, you can do that. Correct? But you have to do that in a particular time at a particular place. First, your mind should be clear. If you're saying in the morning, so morning 6 बजे से लेके 6:15 बजे तक, take for 15 minutes. Easy for that. 15 minutes सबके लिए, beginners के लिए भी आसान है. Everybody okay with that? Yeah. So you have a name, you have a form. That's entirely your choice. उसके बाद आपके पास एक स्थान है, यानी कि एक टाइम है और एक स्थान है जहां पे आप ये कर रहे हो, जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो. इन्वॉल्व एज मेनी फैकल्टीज ऑफ माइंड यू कैन. सो यू विल बी रिसाइटिंग ए प्रेयर, यू कुड बी लाइटिंग ए कैंडल, आप दिया जला सकते हो, जो कुछ मैंने अभी पहले बताया था. ये सब अगर आप कर रहे हो तो क्या है, आपके फैकल्टीज वहीं पे रहेंगे सारे, आपका माइंड कहीं नहीं जाएगा. यू विल बी एबल टू फोकस फॉर 15 minutes. माइंड शुड बी ओके. स्लोली यू कैन पिक अप एनी मंत्रा और द गुरु मंत्रा एंड स्टार्ट चैंटिंग. गुरु मंत्र लिया है तो चैंटिंग में शुरू में होता है कि 10 माला करनी है. सो देयर इज सम काइंड ऑफ ए डिसिप्लिन लाने के लिए, साधना के लिए हम बोलते हैं ये जरूरी है. सो दीस आर सम प्रैक्टिसेस व्हिच आर गिवन टू यू. व्हाई? सो दैट योर माइंड कैन अकस्टम टू इट एंड देन यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दैट साधना. ओके, रिजल्ट क्या होगा? नाउ दिस इज वेयर यू नीड टू डू स्वाध्याय.
और सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ एनालिसिस, क्या मेरा गुस्सा कम हो रहा है, क्या मेरा डर कम हो रहा है, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. अगर ये करने से कुछ फर्क पड़ रहा है देन योर साधना इज फाइन, अदरवाइज यू हैव टू ऐड समथिंग एल्स टू योर साधना. डोंट से दिस इज यूजलेस, नो. अगर कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है, यू हैव टू इंक्रीज द डोसेज, डोंट गिव अप द मेडिसिन. गेट दैट? तो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, अगर भक्ति का जो आप कर रहे हो साधना उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, इंक्रीज द डोसेज. आधा घंटा करो, 1 घंटा करो. मेडिटेशन 1 घंटा नहीं हो रहा है, 1 घंटे अगर बैठे हो आप, उससे काम नहीं हो रहा है, 1.5 घंटा करो. यू हैव 24 आवर्स. व्हाट इज स्टॉपिंग यू? Now you have to understand, while you have materialistic results in your life, you also have a spiritual goal in your life. As a soul, your first and the foremost goal is self-realization. What are you doing for that? That should be the first quality. ये first priority होनी चाहिए आपकी. Now consider what you can do ahead of that. So this is one thing. आप इसको उपासना बोलते हैं. This is one method of devotion is called उपासना और वंदना, right? तो आप कथा सुन सकते हो, सत्संग में जाके कथा सुनते हैं, कितने लोगों ने सुना हुआ है? दैट इज वन पार्ट ऑफ भक्ति, राइट? आप खुद भजन और कीर्तन गा सकते हैं. अनिता जी एक्सपर्ट इन दैट, राइट अनिता जी? तो भजन कीर्तन अगर आप गा रहे हैं, डिवोशनल सॉन्ग, आपका पूरा हार्ट चक्रा, दिल से आवाज आ रही है, हार्ट चक्रा में डेफिनेटली ओपन. अनदर फॉर्म ऑफ डिवोशन, राइट? और क्या डिवोशन में कर सकते हो बताओ? और क्या प्रैक्टिसेस हैं डिवोशन के? बहुत सारे हैं. मंत्र का हमने बात कर ली है. और क्या हो सकता है डिवोशन में? थिंक ऑफ इट. व्हाट आर द अदर काइंड ऑफ डिवोशन एक्टिविटीज दैट यू कैन डू? इन सम रिलीजन दे डू प्रेयर्स 5 times a day. हां, मेडिटेशन. मेडिटेशन, करेक्ट. सो इंक्रीज योर मेडिटेशन. और अगर साधना में आप लगे हुए हो, एंड लेट मी टेल यू, व्हेन वी टॉक ऑफ साधना, आई ऑलवेज से देयर आर, टेक एज मच इन योर साधना एज पॉसिबल. तो योग के 4 मार्ग हम जानते हैं, राइट? तो कर्म योग है, भक्ति योग है, राज योग है, ज्ञान योग है. चारों को ऐड करके आप अपनी साधना का एक रूटीन बना सकते हो. सो व्हाइल यू आर डूइंग मेडिटेशन इन सम, यू कैन डू प्राणायाम इन सम टाइम. तो प्राणायाम एंड मेडिटेशन कैन टेक योर वाइब्रेशन टू अ टोटली डिफरेंट लेवल. आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाएगी. फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ विल चेंज. इवन द मटेरियलिस्टिक हेल्थ विल चेंज. आपके हेल्थ, आपके वेल्थ, आपके रिलेशनशिप, यहाँ पे भी आप मैजिकल रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे. सो ये साधना विच इंक्लूड्स मेडिटेशन, विच इंक्लूड्स प्राणायाम, विच इंक्लूड्स भक्ति, विच इंक्लूड्स सर्विस. सर्विस, कर्म योग की बात करूं, राइट? दिस कैन बी अ perfect path. So you have to see what will move you forward. Okay, so it's not only about bhakti, but what we understand here is, first of all, माइंड के 3 एस्पेक्ट्स को हमको ट्रांसेंड करना है, राइट? ईगो, इमोशन एंड इंटेलेक्ट. ईगो को जैसे ही आप सरेंडर करते हो डिवाइन को, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट पावरफुल मेथड इज कॉल्ड कर्म योग. यू हैव सम सेल्फिश लोअर डिजायर्स को प्यूरिफाई करना, माइंड को प्यूरिफाई करना, कर्म योग इज द मोस्ट पावरफुल थिंग. आपको अपने इमोशंस को अगर सरेंडर करना है, प्यूरिफाई करना है, सरेंडरिंग योर इमोशन टू द डिवाइन, दैट इज भक्ति योग. नथिंग मोर पावरफुल देन दिस. Correct? And if you want to surrender your intellect to the divine, nothing like Gyan Yoga. That is actually Gyan Yoga. But each path independently can also give you that self-realization state. तो कहीं पे आपको स्विच करने की जरूरत नहीं है. अगर एक ही में अगर आप डटे हुए हो, वही आपको पुल कर रहा है और कुछ आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, कीप गोइंग ऑन दैट. भक्ति के मार्ग पे जाके आपको ज्ञान मिल जाएगा. So many examples of that. So many examples of that. Keep doing bhakti. आपको ज्ञान मिल जाएगा, आपको सर्विस, सेवा भाव में आ जाओगे, और आप जो भी करोगे वो भगवान के नाम पे कर रहे हो. So it will take you to the next step. Right. So before I go ahead, let me have some people share. What is opening up? क्या अनुभव हो रहा है आपको, और आपके अनुभव से कुछ अगर शेयर करना चाहें. And I want everybody to switch on their videos. Don't switch off your videos. Let's connect with each other. Yes. कौन शेयर करना चाहेंगे? क्वेश्चन था. या लाइक अगर हम लोग एक मतलब वही फॉर्मलेस डिवाइन को अगर हम लोग एक तरीके से भक्ति और डिवोशन का आप कह सकते हो कि
करते हैं, बट कोई स्पेसिफिक जैसे आपने कहा कि नेम प्लेस या फॉर्म नहीं है, तो वो भक्ति योग में आएगा क्या? नहीं, भक्ति योग में नॉर्मली नेम एंड फॉर्म के साथ आता है, नेम एंड फॉर्म, टाइम एंड प्लेस, then it is bhakti yoga. Otherwise you are doing raj yoga or you are doing gyan yoga, so you just figure out what you're doing. Yeah, if you're talking of infinite, then you're talking of gyan yoga. Nameless, formless, infinite is gyan yoga. If you want to simplicity in meditation, correct, so that is raj yoga. You are focusing your mind. आप अपने माइंड को प्योर कर रहे हो, फोकस कर रहे हो. यू टू अंडरस्टैंड, सी व्हाट हैपेंस. जब तक हम ईगो की बात कर रहे हैं, बाय द वे पार्थ, डिड आई आंसर यू? यस, हाँ. वही. गुड. एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, अभी तो नहीं. Okay, good. So be there and switch on your video. Why are you switching off your video? Okay. Anyway, good. See if it is okay, switch on your video. Now, as I was saying, you have to first understand. अगर आप ईगो को ट्रांसेंड कर रहे हो, you have to understand ईगो में क्या है, तमोगुण है, नेगेटिव क्वालिटीज हैं, राइट? तो आपके पैटर्न्स हैं, लेजीनेस पैटर्न्स हो सकते हैं, आपके कोई भी एडिक्टिव पैटर्न्स हो सकते हैं, आपके नेगेटिविटी में पूरी तरह से आप तमोगुण में ग्रसित हैं पूरे. दैट इज ईगो, राइट? ईगो से बाहर निकल रहे हैं आप. ईगो को सरेंडर करने के लिए मैंने बोला क्या, यू हैव टू प्यूरिफाई योर डिजायर्स. आपके डिजायर्स में इम्प्योरिटी है, सेल्फिशनेस है, ग्रीड है, एंगर है, हेट्रेड है, ये सब क्या इम्प्योरिटीज है, इनको प्यूरिफाई करना है. सो यू विल गो टू द फर्स्ट एक्शन वुड बी ऑफ कर्म योग. स्टार्ट सर्विंग पीपल, start doing charity. So you can start with कर्म योग or you could also easily start with भक्ति योग. तो पहला स्टेट क्या होगा, you will be surrendering your ego. Second है, you have to surrender your emotions. तो ईगो से जैसे ही बाहर आते हो, इमोशन में आते हो. इमोशन में प्रॉब्लम क्या है? इमोशन में क्या होता है प्रॉब्लम, यू आर वेरी वेरी इमोशनल. व्हाट हैपेंस, यू आर वेरी फिकल माइंडेड. इसको शास्त्र में बोला गया है विक्षिप्त चित्त. विक्षिप्त चित्त इज लाइक ए माइंड ऑफ ए बटरफ्लाई. तमोगुण से मच बेटर, तमोगुण की गंदगी से बाहर आ गए हो. लेकिन रजोगुण में क्या है, यू विल कीप जंपिंग अराउंड. बटरफ्लाई को कभी बैठे देखा एक फूल पे? नहीं. यू विल कीप डांसिंग अराउंड. आप इधर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो, कंप्लीटली पैशनेट, वेरी वॉलेटाइल, फुल ऑफ इमोशंस, बट देयर इज नो इमोशनल इंटेलिजेंस देयर. तो भक्ति योग में शुरू में क्या होगा, यू विल बी सो फुल ऑफ इमोशंस. अनकंडीशनल लव आएगा, आपके नेगेटिव इमोशंस जा रहे हैं, यू विल बी सो एक्साइटेड, सो पैशनेट दैट यू विल नॉट नो हाउ टू कंट्रोल योर इंटेलेक्ट. सो यू हैव टू कीप ऑन दैट पाथ. आप भक्ति योग में रहें, भक्ति योग में रहिए. जैसे जैसे भक्ति योग में रहेंगे, you will experience awakening of the heart chakra, जिसको शास्त्रों की भाषा में बोला जाता है धी, DHI, धी. हाँ, तो धी is blossoming of the heart chakra, where unconditional love comes in, divine love comes in, and your heart chakra completely blossoms, and then you can spread that love to all the people in your life. That is the self love or unconditional love or whatever. यहाँ पे आते ही आप लोगों को माफ करना शुरू कर देंगे. You will be able to allow, accept, forgive and thank. So forgiveness, gratitude, compassion, contribution, ये सब qualities आनी शुरू हो जाएंगे and you will move forward. So you have to first understand, emotion को transcend करना जरूरी है, surrender करना जरूरी है. Otherwise problem क्या होती है, अगर intellect ज्यादा हो जाता है और उसमें अगर purity नहीं आती है, यानी कि अगर भक्ति योग नहीं पकड़ा है, सीधा इंटेलेक्ट में चले जाओगे, आपको कुछ फायदा नहीं देगा, क्योंकि आपका ईगो और ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा. राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ योर ईगो, यू आर ओनली फीडिंग योर ईगो, योर इंटेलेक्ट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ डिविनिटी. पहले इमोशन, यानी कि तमोगुण को रजोगुण में आना पड़ेगा, रजोगुण को सतोगुण में जाना पड़ेगा. दैट इज व्हेन द इंटेलेक्ट विल सरेंडर टू द डिवाइन, गेट द डिवाइन विजडम. जब वो डिवाइन विजडम आती है, देन ओनली इमोशनल इंटेलिजेंस कम्स. इमोशनल इंटेलिजेंस सुना हुआ है हम सबने. इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, along with the emotions you are having a very very stable mind. स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, एकाग्रचित्त बोलते हैं. ये कब पॉसिबल है, जब आपके इमोशंस सरेंडर हो जाते हैं, इंटेलेक्ट सरेंडर हो जाता है डिवाइन को. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, कंप्लीट सरेंडर की जो बात कर रहे हैं अमित जी,
कंप्लीट सरेंडर का मतलब है ईगो, इमोशन और इंटेलेक्ट तीनों को सरेंडर करना है डिवाइन में. Then only you that blossoming of the D, that is the spiritual awakening or the awakening at the heart chakra will come. And that will be followed with not only the unconditional love, it will give you a lot of wisdom, a lot of divine intuition, and it will also give you a lot of you can say divine will. तो आपके विल पावर में वो डिविनिटी आ जाएगी, आपके इंट्यूशन में वो डिविनिटी आ जाएगी, आपके इंटेलेक्ट में विजडम आ जाएगा, यानी कि डिवाइन विजडम आ जाएगा, and then you will be absolutely at a different level. So that is the power of bhakti, and without bhakti ज्ञान will have no effect, क्योंकि हार्ट चक्रों को पार करने के बाद ही आप थर्ड चक्र तक जा सकते हैं. That is the importance of bhakti. So थोड़ा सा लंबा सेशन था, बट ये बताना जरूरी था कि भक्ति योग क्यों जरूरी है, डिवोशन की इंपॉर्टेंस क्या है. Now you can pick up anything that you are comfortable with in bhakti. तो जितने अभी तक हमने डिस्कस किया पॉइंट्स जो भी डिस्कस किए, तो इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है या कोई शेयर करना चाहता है तो लेट्स हैव इट, एंड देन आई विल टेल यू ए फ्यू थिंग्स व्हिच विल टेक यू फॉरवर्ड टू आगे क्या, व्हाट इज पॉसिबिलिटी ऑफ दिस इन योर साधना, हाउ न्यू पॉसिबिलिटीज कैन ओपन अप इन योर साधना बाय डूइंग practices of bhakti. Yes, so any questions? Anybody who would like to share, ask question? डिफिकल्ट जो आप बता रहे हैं ना सर कि ईगो इतनी बीच में आती है सर, एंड दो योर हार्ट इज लाइक यू फील योर हार्ट इज प्योर एंड एवरीथिंग, बट देन सामने वाले का भी वैसा, लेकिन यू फील एट टाइम्स व्हेन यू आर टू गुड ना, देन यू फील दैट यू आर टेकन फॉर ग्रांटेड सर. So if somebody takes you for granted that you are good, there is nothing better than that, no? They know that you are but good. then, Wow. then they, you know, keep on like so then we feel ke, you know, that is what is coming in between sir. Okay, so let me first also I understand what you're trying to say. So it doesn't mean that unconditional love ka matlab ye nahi hai ki you will start ask somebody to go over me like a bulldozer. No. You're not going to allow anybody to steamroll you. Self love ka matlab hai you love yourself first and then you love others, right? So you will have a lot of self respect and you will have a lot of dignity in saying stop that. I'm not a victim, I am divine. I don't want to be victim sir, that's right sir. Yeah. So victim syndrome है अपने, असल में क्या प्रॉब्लम है हर चीज में, we become, हमको अपने छोटेपन पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है that we are small, we are weak, we are helpless, victim kind of a thing. You have to first get rid of that ego. You are divine and you have the divine powers. आपके साथ भगवान का हाथ है आपके ऊपर. How can you be a victim? भक्ति में सबसे पहले जब आप सरेंडर करते हो इमोशंस को, आप अपने डाउट्स को सरेंडर करोगे, आप अपनी उस फीलिंग ऑफ स्मॉलनेस को सरेंडर करोगे, आप अपने अनहैप्पीनेस को सरेंडर करोगे, आप अपनी चिंताओं को सरेंडर करोगे. राइट सर. हाँ, जैसे हमारे वैष्णव प्रथा में है, इफ यू आर अनहैप्पी इन द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन इट इज अ सिन. करेक्ट. गुनाह है. हाँ, it is a sin to be unhappy in the presence of a divine. That means you don't have any faith in the divine grace. करेक्ट सर. वो उसी के फेज पे तो सब चलता है सबके. हाँ, he is doing the best and that is when surrender comes. So surrender is not like हाँ मैंने surrender कर दिया. Surrender कुछ नहीं किया आपने. You are just saying that from your mouth, but there is a lot to surrender. First when you say surrender your ego, then you have to कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कर रहा है भगवान कर रहा है मेरे थ्रू. तो घमंड नहीं आना चाहिए ना. दूसरा, इमोशंस को सरेंडर कर रहे हो तो आपके सारे नेगेटिव इमोशंस वहां पे खत्म हो जाने चाहिए. You will experience only positive emotions now. Feeling happy, giving thanks, right? Right, sir. That's what it is. So feeling happy, giving thanks means you have no right to be unhappy. You have no right to be चिंताग्रस्त. हाँ, कैसे बोलते हैं, चिंता चिता समान. क्यों नहीं था जी? ठीक कह रहा हूँ ना? चिंता चिता समान है. चिंता करनी नहीं है. अगर चिंता आप अपनी सरेंडर कर दो भगवान को, निश्चिंत होके साधना करो. करेक्ट? Thanks, Okay, sir. good. Anybody else who would like to share? हाँ जी अनीता जी, अनुभव शेयर करिएगा. हाँ जी, go ahead. नमस्कार सर. नमस्कार. और
सभी मेंबर्स को नमस्कार। जैसा कि सर आपने कहा कि हमारे को इसमें नाम, नेम और फॉर्म भक्ति योग में एक तरह से हम कह सकते बहुत जरूरी हैं, और मैं इससे 100% एग्री हूँ। और उसमें जब हम नेम और फॉर्म सामने लेकर आते हैं तो हमें कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है, और परमात्मा के प्रति समर्पण करना भी आसान हो जाता है। और इसका लाइव एग्जांपल ये रहे। ये भगवान है, आ रहे होंगे शायद सबको, और मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसी डिस्कशन होनी है। तो ये हमेशा, जैसे मैं अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना पसंद करती हूँ, तो हमारे ठाकुर जी भी अगर अब एसी चल रहा है तो उनको एसी में ही मुझे बिठाना है। मतलब हम कहते हैं उनकी कृपाओं से सब मिला है, तो उनका इस चीज पे अधिकार सबसे पहले है। और मतलब जैसे मैं अगर अपने रूम में अकेली भी होती हूँ, मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। मैं हमेशा कुछ ना कुछ टॉक चलती रहती है मेरी परमात्मा से। और आकार होने से ये होता है कि मेरा अनुभव यह है कि बहुत आसानी रहती है मुझे। इवन मैं वॉक करती हूँ तब भी अगर मैं अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करती हूँ तो मेरे सामने वो विजन रहता है। तो उस समय मैं उनके वाइब्रेशन और अपने बाल मुकुंद ठाकुर जी के वाइब्रेशन वो जल्दी कैच करती हूँ। बहुत बढ़िया। और ये तो आज नेचुरली हुआ है, क्योंकि मैंने तो क्लास भी ज्वाइन देर से करी है, लेकिन मेरे को बहुत फिक्र होता है। जैसे बाल रूप है तो खाना भी खाना है, इवन रात को अगर मेरे को सोना भी है तो यहीं पर इनको विश्राम कराती हूँ कि ये गर्मी में क्यों सोएंगे, एसी वाले कमरे में सोएंगे। गुड गुड, वेरी गुड। क्या बाकी लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या क्या इंप्रेशन बन रहा है आपको ये सुन के? God is alive within her. How many of you can get that? That's pretty much divine. Divine is alive around you, within you, inside you, outside you, everywhere. Yes. ये प्रेजेंस जब आ जाती है ना, then you are on the path. तब आप भक्ति योग के पाथ पे। और सिर्फ भक्ति के दम पे मैं बता रहा हूँ आपको, एक सेकंड निकिता जी, सिर्फ भक्ति के दम पे मैं बता रहा हूँ आपको कि you will get all the ज्ञान that you want. आपको कोई ज्ञान योग करने की जरूरत नहीं है, भक्ति में पकड़े रहिए। आपको जितना ज्ञान मिलना है मिल जाएगा, आपको जितनी सिद्धियां मिलनी है मिल जाएंगी, आपको जितनी पावर्स मिलनी है मिल जाएंगी, और आप सेल्फ रियलाइजेशन के पथ पे चलेंगे, समाधित वो हो सकते हैं। टफ, यस, बहुत जन्म लग सकते हैं, यस, बट द पाथ इज राइट। परफेक्ट, बहुत बढ़िया अनीता जी, गुड जॉब। यहाँ पे मैं एक छोटा सा वो बताऊंगा आपको, डिवोशन के नाम पे, ये तो कंप्लीट सरेंडर वाली बात हो गई इनकी। जब भगवान आपके सामने लाइव हो तो सरेंडर करना तो हो ही गया, वो तो दिख ही रहा, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रसंग यह आता है कि डिवोशन के आगे लेवल क्या है। तो जैसे हमने कहा, स्मरण है, चिंतन है, देन आप बोल सकते हो कीर्तन है, सत्संग है, सब कुछ है, राइट। एक भाव आता है आगे चल के भक्ति में जिसको हम बोलते हैं दास्य भाव, जो कि भक्ति योग में बहुत ज्यादा मानते हैं, जिसको दास्य भाव, लाइक आई एम सर्वेंट एंड यू आर द लॉर्ड। इसके ऊपर का एक और भाव आता है, ऊपर का नहीं बोलूंगा, अगला एक और भाव आता है जिसको बोलते हैं सखा भाव। यहाँ पे डिवोटी जो है वो भगवान को अपना फ्रेंड मानता है, सखा। जैसे अर्जुन और लॉर्ड कृष्ण, और उद्धव एंड कृष्ण, राइट। सो फ्रेंड्स, सखा भाव। उसके बाद कम्स टू वननेस, जहाँ पे सरेंडर की बात हो रही है। तो जब दास्य भाव की बात आई है तो एक छोटी सी रेफरेंस बताना चाहूंगा, बट आई विल कम टू दैट बिफोर। फर्स्ट लेट मी चेक विद निवेदिता जी। निवेदिता जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी? नहीं, मैं सर वही बताना चाह रही थी कि जो अनिता जी ने बोला ना, तो वो लड्डू गोपाल जी मेरे भी पूज्य है, मतलब सो इट इज। और इतना जो मतलब फिर भी उनकी भक्ति ज्यादा है, जो बोलते हैं ना कि मैं सोते जागते बैठते, वो उतना अगर शायद मेरे में आ जाए, एक थोड़ा एक ओपन अप ये हुआ है, आप जैसे बोला ना सर, तो समथिंग विल डेफिनेटली ओपन अप। सी, मूर्ख मत मानो, दैट इज अ सिंबल।
That Exactly. energy of the divine is there within you, outside you, everywhere around you. Feel that Correct. alive, and Right. you will be on the right path, because that will stop you, that will protect you, that will stop you from doing anything wrong, and that will, Right. you know, put your spiritual Till- journey till- on a till- fast forward. Till this moment, sir, that is only मैं बोलती हूँ ना सर, वो मुझे अभी तक मस्त जहाँ मैं हूँ वेरी नाइसली हाँ संभाले हुए हैं, बट इन बिटवीन कभी कभी सर आ जाता है ना, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, वो भी आता है सर. कोई बात, that will come. वो तो हम जानते हैं ना, हमारे उसमें बोलते हैं ना, ह्यूमन एलिमेंट तो रहेगा, बट डिवाइन एलिमेंट को ज्यादा फोकस करो. ह्यूमन एलिमेंट को डील करो, डिवाइन एलिमेंट पे फोकस करो. Correct? So we will keep moving on. Great. Now I'll come to a small story. This is a reference which is taken up from Ramayana. So in Ramayana, the context is what? Hanuman ji और Lord Rama के बीच में conversation. So Lord Rama asked Hanuman ji कि Hanuman ये बताओ, how do you relate to me? So this is actually a context. तो उसमें बोलते हैं, हनुमान जी बोलते हैं कि at the body level, I am a servant and you are the Lord. So I am here as a दास्य भाव में. तो मैं आपका दास्य भाव में हूँ. So whatever your orders are, even if you say or if you do, even if you don't say, I will fulfill that. So my job is to serve you. Very clear. At the second level, जीव भाव. So you have to understand the difference. I'll come explain it a bit later. Second बोलते हैं, अगर वो जीव भाव में मैं आऊँ, तो I am the part and you are the whole. यानी कि आप पूर्ण हैं और मैं पूर्ण का एक पार्ट हूँ. करेक्ट? कहते हैं, but at the soul level, there is absolutely no difference. I and you are one. So this is huge as compared, I mean, when you compare it with the kind of studies that we do or the kind of Vedantic knowledge that we are talking about, तो चाहे वो वेदांता विजडम हो या फिर कुछ भी हो, भक्ति योग हो, you have to understand the beauty of this explanation. ये पूरा सार है, अगर आप पूरा समझ सकें, सारे योगों का निचोड़ है ये. तो अगर आप बोलते हैं कि मैं सर्वेंट हूँ और आप लॉर्ड हैं, ये भक्ति योग है. एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द्वैत, वेदांता में है द्वैत, टू, ये टू है. करेक्ट? देन वी टॉक ऑफ पार्ट एंड होल. दिस इज वशिष्ठ वेदांता. वशिष्ठ वेदांता में बहुत क्लियर है कि गॉड परमात्मा इनफाइनाइट है और मैं उसका एक पार्ट हूँ. बाय नेचर वी आर द सेम. वो भी इनफाइनाइट है, मैं भी इनफाइनाइट हूँ, लेकिन मैं उनका एक पार्ट हूँ. सो पार्ट एंड द होल, दैट इज द रिलेशनशिप. जीवा में सेंटिएंट बीइंग अगर आप हो तो वो परमात्मा है, मैं आत्मा, वो परमात्मा. बट एट द सोल लेवल, अहम ब्रह्मास्मि. आई एम डिवाइन, यू आर डिवाइन. देयर इज नो डिफरेंस एट द सोल लेवल. सो भक्ति योग आल्सो विल गिव यू द कंप्लीट विजडम ऑफ ज्ञान योग. तो अलग से ज्ञान योग करने की जरूरत नहीं है. भक्ति में आप गुरु मंत्र का जाप करते रहिए, आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा. राइट? So that was a small reference I wanted to make for today. Now, any other questions that anybody has? Hello? Hello? Anybody said something? Somebody? Okay. कौन शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैं एक, I think बहुत इंटरेस्टिंग बात चल रही है, और साथ में या थिंक हार्ट चक्रा से हम आगे काफी जाके भक्ति योग के बारे में, आई थिंक इट वाज, अगर हम हार्ट चक्रा पे वापस आए, बहुत अच्छा था ये. मैं एक पोस्ट मैंने जैसे दिन में शेयर किया था, मतलब आई वांट टू शेयर समथिंग व्हिच इज दैट हाउ टू नाउ वर्क अपॉन द हार्ट चक्रा एंड व्हाट मे बीन प्रिसाइज थिंग. सो आई वांटेड टू शेयर कि जो मेरे को बहुत बेनिफिशियल लगा इन द लास्ट एटलीस्ट couple of years that has really worked for me. जैसे मैंने एक पोस्ट भेजा है जिसमें if we you know go through that post, उसमें लिखा है जैसे कि what is the way to balance and what are the things that you get when the heart chakra is balanced. So वो भी कई सारी चीजें which is beyond भक्ति योग, और the way it has worked on me, जैसे वो कलर अगर आप देखें तो ग्रीन कलर का, I don't know, and that sound of the very particular, so all the chakras have different sounds. So इसकी जो sound है वो भी उस तरह के YouTube वीडियोस हैं. तो अगर हम देखते हैं इस तरह के YouTube वीडियो, स्पेशली फोकसिंग ऑन दिस, अगर हम 5-5 मिनट भी दिन में देखते हैं तो we will figure out that you know, जो emotionally you feel emotionally balanced, you feel serene, you feel a lot more emotionally strong. तो I think वो meditation music बहुत help किया है मेरे को in the last couple of years. So see, the paths can be different. Ultimate purpose is the same, healing of the heart chakra, right?
तो अगर आप हीलर हैं तो आप हील करेंगे, सिंपल है, आपको कुछ और नहीं करना है। एज ए हीलर एंड आई टीच दैट टू पीपल इन माय हीलिंग क्लासेस, राइट। तो हीलिंग सेशंस में हम क्या सीख रहे हैं? हार्ट चक्र को हील करो, बहुत मॉडलिटीज हैं, हार्ट चक्र को हील करो, यू विल गेट इट बैलेंस्ड, राइट। तो स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, दे विल हील दैट। अब जो मेडिटेशन में हैं वो उसके बीज मंत्र को लेके आप मेडिटेट कर सकते हैं, राइट। तो इट विल बी यम 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 यम, जो बीज मंत्र है उसका आप बीज मंत्र बोलते रहिए और वो ग्रीन कलर विजुअलाइज करिए, एंड दैट ग्रीन कलर इज स्प्रेडिंग टू ऑल ओवर द बॉडी, तो आप वो आराम से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो राजयोग में आ जाएगा आपका हीलिंग में। आई होप एवरीबडी एबल टू कनेक्ट विथ मी, या क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल दिखा रहा है and it's already 10 o'clock, so I'll have to wind up fast. Okay, so what I'm trying to say is that Amit ji, you are absolutely right, बहुत सारे methods हैं, हम एक पर्टिकुलर मेथड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे मेथड्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हीलिंग मेथड अलग हो जाएगा एंड राजयोग का मेथड अलग हो जाएगा, बट राजयोग इज एक्चुअली फॉर द थर्ड आई चक्र, दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। राजयोग इसके ऊपर वाले, अब यहाँ से इसके बाद आएगा, एक बार भक्ति योग आ जाए, बिकॉज सी अनलेस यू क्रॉस द हार्ट चक्र इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर paths of yoga to have any kind of impact, क्योंकि अगर आप सिर्फ ज्ञान योग करेंगे और आपका हार्ट प्योर नहीं है, you will not get anything। इसलिए जरूरी है मेडिटेशन में भी, जब तक प्रत्याहार नहीं करते, राजयोग में अगर मैं अष्टांग योग को कंपेयर करूं तो भक्ति योग will actually match with the प्रत्याहार part of राजयोग। प्रत्याहार में क्या कर रहे हैं? टर्निंग इनसाइड। टर्निंग इनसाइड मीन्स व्हाट? हृदय परिवर्तन हो रहा है ना, बाहर की दुनिया से छोड़ के अंदर की दुनिया में जा रहे हो, तो प्रत्याहार इज ऑल्सो नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट। हृदय परिवर्तन जो बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। और जो मैं अभी जो धी बोल रहा था, जो स्पिरिचुअल हार्ट की ब्लॉसमिंग है, दैट इज ऑल्सो शास्त्रों में बोला गया है उसे, इट इज कॉल्ड व्हाट, हृदय गुहा, हृदय गुहा बोलते हैं उसे, या गुहा कैवल्य बोलते हैं, गुहा कैवल्य, बेसिकली ब्लॉसमिंग ऑफ द हार्ट चक्र। So there are different methods of बहुत हैं, आप सिंपली मेडिटेशन कर लीजिए बीज मंत्र को लेके, वो भी पहुंच जाएंगे। बट कोई भी चार बात को आप पकड़िए, इजिएस्ट क्या है? इजिएस्ट हार्ट चक्र के लिए भक्ति योग, क्योंकि आपके इमोशंस बड़ी जल्दी ट्रांसेंड हो जाते हैं। इमोशंस की प्योरिटी के लिए भक्ति योग इज द बेस्ट, ईगो के प्योरिटी के लिए कर्म योग इज द बेस्ट, इंटेलेक्ट की प्योरिटी के लिए ज्ञान योग इज द बेस्ट। When I say best, that means this is the way traditionally it has been taught। तो तीनों को हो, आपको पाथ को फॉलो करना है, और फिर आप कर्म तो कर ही रहे हैं, तो सारे आपके कर्म में ही नजर आएंगे। अगर आप पूरे दास्य भाव के साथ सर्विस में हैं भगवान के, उसके बाद जो भी कर्म करेंगे तो सेवा ही होगी ना। गोपाल के नाम पे चाहे आप भूखों को खाना खिला रहे हैं, या हंगर प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, या फिर कोई अनाथाश्रम या कोई ओल्ड एज चला रहे हैं, you are serving the divine। So there is a difference between social activity and a spiritual activity, you have to understand that। Going to a temple and coming back, doing some donations at the orphanage can be a social activity, लेकिन जब आप ये देख के करते हो कि वो भगवान का ही अंश है, भगवान का ही रूप है, तो वो spiritual activity बन जाता है, then it is a part of your sadhana, otherwise it will not make any difference। Correct? So चैरिटी में भी ध्यान रखना है कि आपका ईगो बूस्ट ना हो। कर्मयोग में भी आप चैरिटी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, बट आपको ईगो बूस्ट नहीं होना चाहिए। ईगो बूस्ट हो गया तो सोशल वर्क है, फिर स्पिरिचुअल वर्क नहीं रहा। How many of you can connect with what I'm saying? Spiritual work and social work are totally different। Social work is a pastime, वो तो टाइम पास कर रहे हो। स्पिरिचुअल एक्टिविटी साधना है, वो आपकी जर्नी को आगे बढ़ाएगी। Okay, anybody else who would like to share? Any question? We are ending to the session before I hand it over to Sanjeev for his special sharing or special talk. Yes, Anita ji. सर, एक बात जो लास्ट टाइम आपने कही थी कि भक्त को दुख नहीं होता, इससे मैं थोड़ा सा, मेरा अलग विचार है। भक्त वो तो एक अलग स्टेज होती है, सबकी अलग अलग स्थिति होती है, लेकिन भक्त को दुख भी होता है, लेकिन
विपरीत, हम सत्संग में जाते हैं, नाम जपते हैं, तो विपरीत परिस्थितियों में हमें संभलने की शक्ति मिल जाती है उस समय। जैसे पूरी बारिश में अगर हमें दुखों की बारिश में गीले होना है तो हमें कृपा का छाता मिल जाता है, तो हमें अनिता जी, थोड़ी सी हमें बूंदा नहीं, में हमें छूटती नहीं, है। मुझे बोलिए, ज्यादा अच्छा मुझे, है। चलो ओके ओके सर, मुझे 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 कृपा का छाता मिल जाता है, और वो थोड़ी सी बूंदों में ही मेरे कर्म पूरे हो जाते हैं, दुख छू के चला जाता है, पूरा के पूरे मैं दुखों में गीले नहीं होती। तो तो उस समय ये आप दुखी कृपा, होते हैं, सुखी होते हैं? देखो जब अगर परिस्थितियां ऐसी आती है तो दुखी भी होती हूँ, ऐसे नहीं है, लेकिन मैं संभल जल्दी जाती हूँ। जैसे लोग उस दुख को 10 दिन तक लेकर परेशान होते हैं, मैं कुछ घंटों में या कुछ 1-2 दिनों में मैं कृपाओं को फिर से अनुभव करने लग जाती हूँ। तो क्या पता बड़ी तकलीफ भगवान ने छोटी करके दी है, उसमें भी बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ मैं। एब्सोल्युटली। तो जब दुख आए तो बोलना बड़ी प्रॉब्लम थी, छोटी करके दे दी, थैंक यू। तो अब दुखी नहीं हो, अब सुखी हो, यही बताना चाह रहा था मैं। हम्म। भगवान की कृपा रहेगी, आप दुखी हो ही नहीं सकते। अपने दुख को तो आपने पहले ही त्याग दिया, सरेंडर कर दिया भगवान की झोली में। भगवान देखेंगे, अब आपका प्रॉब्लम है ही नहीं, वो भगवान की प्रॉब्लम है, अगर आप भक्त हो तो। वही तो मैं कह रही हूँ, भक्तों की भी तो अलग अलग कैटेगरीज है ना, कोई मध्यम श्रेणी का, कोई उच्च का है, कोई छोड़ दीजिए, मध्यम श्रेणी वन है। सब पार हो जाएंगे, आप सरेंडर करिए बस। मतलब सरेंडर है, मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैं भी, मेरे को जरा कि सेशन में आए हैं तो एवरीबॉडी हैव राइट टू से, और हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू करने का भी अधिकार होना चाहिए। और मुझे अक्सर म्यूट कर दिया जाता है, तो मैं इसलिए आज बात नहीं करना चाह रही थी। तो मुझे तो जो अच्छा लगता है मैं फेस टू फेस बोलती हूँ, बुरा लगता है तो मैं फेस टू फेस बोलती हूँ, ये आपको अच्छी तरह से पता है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है अनिता जी, जब टाइम हो जाएगा तो मैं म्यूट कर दूंगा आपको, चिंता मत करिए। सर अभी बोल अगली बार सकती म्यूट है, करोगे, मैं बोलना ही नहीं आ रही हूँ जब। अभी बोल सकते हो। ओके, यस संजीव, ओवर टू यू। Thanks Shashi and thank you very much everybody for sharing. आपने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट बोले, and शशि जो आपने बात बोली है ये बहुत पावरफुल है। ऑल्दो आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हो, जिस ब्रीफ में बता रहे हो, इट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। एंड आई विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट जहाँ से सिल्विया ने बोला था कि लाइक कितना जाना है, कितना नहीं जाना है, टाइम फ्रेम की बात करी है। तो सिल्विया योर पॉइंट इज एब्सोल्युटली वैलिड। ओनली डिफरेंस इतना है कि बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, जो भी अभी शशि बता रहे हैं और आप समझ रहे हैं, हम लोग सब समझ रहे हैं, ओनली डिफरेंस इज दैट कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो बहुत बात का स्टेप है। व्हेन शशि सेज be there in 24 hours, that means be with your emotions, because ultimately bhakti yoga, heart chakra is emotional seed. तो इमोशन से कनेक्ट करना है, इट्स नॉट अबाउट 24 घंटे पूजा करनी है, इट्स नॉट अबाउट 24 घंटे मंत्र करना है, क्या करना है, इट्स इंडिविजुअल। सो आई शेयर अ स्मॉल एग्जांपल एंड सो दैट यू विल कनेक्ट। सो अभी नवरात्र गए हैं, अभी हमारे नवमी में पूजा करते हैं, जो कंचक जो जमाते हैं, तो हम अपने पेरेंट्स के यहाँ गए, वहाँ पे जाके, क्यों हम एक ही जगह करते हैं, तो ये हुआ था कि हम लोग यहाँ से पहुंच जाएंगे, वहां जाके हम लोग आके से प्रसाद बनाएंगे, और हमेशा नवमी में मैं हलवा बनाता हूँ, तो इट्स माई ड्यूटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और हमने कहा कि हम आ जाएंगे 8:30 तक, एंड वी रीच बाई 9 o'clock। तो जाते वहां पे ना मम्मी बिल्कुल गुस्से में थी, तो ये को टाइम है आने का, ये सारा कुछ है। सिल्वी आई थिंक यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद दिस, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे। सो नाउ आई सेड मम्मी कोई बात नहीं, आ गए हैं, हो जाएगा। एंड शी वाज लाइक एट द हाई लेवल ऑफ हर एंगर। तो देन दैट्स द पॉइंट, आई सेड नथिंग, और मैंने अपना हलवा बनाना शुरू करा, एंड विद इन हाफ एन आवर सब कुछ रेडी हो गया, हाफ एन आवर टू 45 मिनट। उसके बाद मैंने मम्मी से पूछा गुस्सा क्यों आया आपको? बोले लेट हो गए थे। कितना फर्क पड़ गया, क्या हो गया? और आप इतनी पूजा करते हो, आप थर्सडे की पूजा करते हो, आप सैटरडे की पूजा करते हो, आप ट्यूसडे की पूजा करते हो, सबके आप पूर्णिमा पे पूजा करते हो स्पेशली, और आपको 15 मिनट 20 मिनट के अंदर गुस्सा आ गया, मतलब यू थॉट दैट वे कि यू इवन फॉरगॉट कि हम घर में आए हैं, पहले हैप्पी नवरात्रि की विशेष भी करनी है दूसरे को। सो Shashi, what you are telling is very very powerful. You have just touched the very basic of it. ये इतना पावरफुल हम सबको ना एक्चुअली में हार्ट चक्र को ये बैलेंसिंग चक्र बोलते हैं, क्योंकि मिडिल ऑफ चक्र सारे, इसको बहुत डीपली समझना पड़ेगा। अब मेरी और अमित जी की तो बहुत पहले, करीब 1.5 साल पहले, जब अमित जी के घर में हमने फंक्शन करा था, एक डिस्कशन हुआ था इमोशंस के ऊपर, कि मैंने, अमित जी आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, देयर इज नथिंग राइट एंड नथिंग रॉन्ग।
कुछ भी गलत नहीं होता है, जहाँ पर आप पर हमारा डिस्कशन भी हुआ था इसके ऊपर कि नहीं, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा तो गलत कैसे नहीं है. So that's where we are playing with the emotional heart chakra. Shashi, thank you very much. And all of us has to really get the deeper version of it rather than just getting blocked कि कहाँ पे हो रहा है. And that's a real journey for higher level of spirituality. Shashi, thank you very much. Great. Thank you, Sanjeev. So before we close the session, anybody who wants to share something else? कोई कुछ और बोलना चाहेंगे? Any questions? Anything you want to share? What you're taking away from the session? Anybody? Last and final call. Just Okay, wanted great. to thank you so much. Just want to thank you so much. Welcome, Nivedita ji. Yeah. All right, great. So in that case, we come to the end of the session. We are 9 minutes over time, so I seek your apologies for that. And with that, we come to the end of the session. Thank you very much for your participation. And we meet next Wednesday again, 9 p.m. sharp. Till then, enjoy a great day, enjoy a great life. Thank you. Thank you, Shashi. Thank you. Thank you, Chief. Thank you. Bye-bye.